Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from Amal Kamran Group of Schools. Students, from today we are going to start a new chapter that is from poetry section of the book Flamingo. So students, up to now in poetry sections we have done three poems that was up to Keeping Quiet. From today onward, we are going to start with the fourth poem that is A Thing of Beauty, composed by John Keats. Before we talk about the poem, as it is our custom, we first of all would like to talk about the poet John Keats. You know, of all the great poets of the early 19th century, John Keats, who was from 1795 to 1821, was the last to be born and the first to die. Born in 1795 in the city of London to a poor stable keeper, he was brought up amid surroundings and influences that were not meant to awaken poetic genius. Rendered to an orphan at the tender age of 15, he was apprenticed as a surgeon by his guardian, Mr. Abbey. However, soon he left the medical profession to devote his life to literature since he realized that poetry was his true interest. He received much encouragement and inspiration from his friends Leigh Hunt, Haydn, etc., and published his first volume of poems in 1817. Braving ill health, financial constraints, and the holistic criticism he received for his second volume, Keats continued without getting discouraged and gave his best creations, the great odes, in the last phase of his life. Keats breathed his last in February 1821 at the age of 26 and is still rated among the greatest romantic poets of England. So, this is something about this great poetic genius who lived just a very short life of 26 years. Had he been with us for a longer, there would be a different store of literature with us. So let us start about the to talk about the poem, and the first, the very first thing to understand this poem of a poetic genius, let us try to have or to create an understanding with this poem. A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is an excerpt from Keats' poem Endymion, a poetic romance, one of the earliest creations which prepared in the volume of poems published in 1818. So the very first thing that comes in front of us about this poem is that the poem as it is in our course was not written just up to this length. This is an excerpt from a longer poem whose name was Endymion, a poetic romance. ये जो पोएम है ये एक बड़ी पोएम है एंड्रीमियन
पोएटिक रोमांस उससे लिया गया है। और ये इंडिमियन जो है ना, इंडिमियन जॉन कीट्स के अर्लीस्ट क्रिएशंस में से एक है, which appeared in the volume of poems published in 1818. The poem is based on the classical Greek myth of the love of the moon goddess Cynthia for a young shepherd prince Endymion. ये जो पोएम है इंडिमियन, ये एक क्लासिकल ग्रीक मिथ है जो कि मून गॉडेस सिंथिया के प्रेम पर बेस्ड है, जो कि एक यंग शेफर्ड प्रिंस इंडिमियन के लिए था। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल स्टोरी, इस क्लासिकल स्टोरी के मुताबिक सिंथिया डिसेंडेड फ्रॉम हेवन टू किस हर बिलवेड इंडिमियन स्लीपिंग इन एवरलास्टिंग यूथ ऑन द टॉप ऑफ माउंट लेटमस इन कैरिया। इसके मुताबिक जो सिंथिया थी मून गॉडेस, वो हेवन से अर्थ पे आती है, माउंट लेटमस जो कि कैरिया में है, जहाँ पे उसका बिलवेड अपने एवरलास्टिंग यूथ में सो रहा होता है, उसको किस करने के लिए। द enchanted youth resolved to seek her and wandered through the forest and down under the sea. The poem Endymion, as Keats himself wrote to one of his friends, is a test of his powers of imagination and invention. Regarding this poem, जॉन कीट्स खुद लिखते हैं, अपने एक फ्रेंड को लिख करके उन्होंने बताया था कि ये पोएम उनके इमेजिनेशन और इन्वेंशंस के पावर्स का एक टेस्ट था, जो कि उन्होंने इंडिमियन नामक इस पोएम में किया। एलेगरी का यूज़ खूब किया गया है इस पोएम में, आई मीन इंडिमियन में। So before we talk, let us have an understanding about this form of poetry, that is allegory. An allegory is a literary device that is employed by the writer to convey deeper meanings through symbolic figures or actions or imagery. एक जो allegory होता है, allegory एक literary device होती है जो कि राइटर्स इम्प्लाई करते हैं डीपर मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो सिंबॉलिक फिगर्स या एक्शंस या इमेजरीज का यूज करता है। द एलेगरी हेल्प्स द ऑथर टू इंटरप्रेट अ मोरल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मैसेज। ये जो एलेगरी है, लिटरेरी डिवाइस, ये उस ऑथर को एक मोरल या कह सकते हैं स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल मैसेज को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। द स्टोरी ऑफ एंडिमियन इज एंडिमियंस परस्यूट ऑफ सिंथिया इज एन एलेगरी फॉर मैन्स क्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी और सम काइंड ऑफ सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस। जो एंडिमियन है, एंडिमियन का परस्यूट है सिंथिया के लिए, वो एक एलेगरी है मैन के क्वेस्ट का, मैन के आइडियल ब्यूटी या कुछ तरह के सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस के लिए जो मैन का क्वेस्ट होता है, उसके लिए एक एलेगरी है। दिस ऑल आर समथिंग अबाउट दिस पोएम, आई मीन इंडिमियन। This poem that is a thing of beauty, it is the beginning of Keats' poem Endymion. अगर हम इस पोएम की बात करें जो हमारे सिलेबस में है, तो ये उस लॉन्गर पोएम जो कि इसका नाम इंडिमियन है, इंडिमियन पोएम की बिगिनिंग से लिया गया है। And this poem voices his
इटर्नल लव फॉर ब्यूटी। ये जो पोएम है, ये जॉन कीट का ब्यूटी के प्रति जो इटर्नल लव है, उस इटर्नल लव को हमारे सामने रखता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लव, किड्स लव फॉर ब्यूटी। किड्स का ब्यूटी के प्रति जो प्यार था, उसका लेवल क्या था? You know, John Keats belonged to the second generation of romantic poets, along with Shelley and Byron. आप लोगों ने पीबी शेली और बैरन जैसे पोएट्स का नाम सुना होगा, एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद द पोएट वर्ड्सवर्थ। आप वर्ड्सवर्थ से भी परिचित होंगे, नो डाउट। तो जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्स की जो सेकेंड जनरेशन है, जिसमें पीबी शेली थे, बैरन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये उस सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। वर्ड्सवर्थ was a worshipper of nature, हम सब जानते हैं। जैसे हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ इन इंग्लिश इज फेमस एज द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर के पुजारी थे। और अगर हम कीट्स की बात करें, कीट्स वॉज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। कीट्स जो कि इस पोएट के इस पोएम के पोएट है, वो ब्यूटी के वर्शिपर थे। लव ऑफ ब्यूटी इज द डोमिनेंट नोट ऑफ हिज पोएट्री फ्रॉम द अर्ली एंड्रीमियन टू हिज लास्ट पोएम हाइपरियन अ विजन। इनकी जो शुरुआती पोएम है, अगर हम इंडीमियन की बात करें, तो इंडीमियन से लेके इनकी जो अंतिम पोएम है हाइपरियन, वहां तक इनकी हर एक पोएम में आप इनके ब्यूटी के इस स्नेह को, इस लव को आप देखेंगे। फॉर किड्स ब्यूटी वॉज द मूविंग स्पिरिट ऑफ हिज लाइफ एंड आर्ट। किड्स के लिए जो ब्यूटी थी वो उनकी लाइफ और आर्ट का मूविंग स्पिरिट थी। ब्यूटी वॉज हिज रिलीजन। ब्यूटी उनका धर्म था। हिज इमेजिनेशन वॉज एक्साइटेड बाई ब्यूटी। उनकी जितने भी इमेजिनेशन है वो ब्यूटी के द्वारा एक्साइट होते थे। एंड ही वॉज एट हिज बेस्ट ओनली इन इट्स प्रेजेंस। और वो अपना बेस्ट तभी कर पाते थे जब वो ब्यूटी के प्रेजेंस में होते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से असर्ट किया है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नो टू नीड, यू नीड टू नो। ये उनका एसर्शन था। सौंदर्य ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही सौंदर्य है। और बस आपको इस धरती पे यही जानना चाहिए और सिर्फ यही जानने की जरूरत है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, इट इज द ब्यूटी, it is the beauty that keeps us bound to this earth. It is the beauty that gives us hope, because hope is itself a beauty. It is the beauty that gives encouragement, because encouragement itself is a beauty.
all the things that gives us joy, all the things that makes our way of life easy is a form of beauty. This was the notion that John Keats has propounded. हमें हमारे जीवन को जीने के लिए वो सब कुछ जो हेल्पफुल होते हैं वो सब सौंदर्य है. In this poem, you are going to learn a lot about the beauty. आप अगर ब्यूटी के सामान्य अर्थ से ही वाकिफ हैं, आप उसके लिटरेरी मीनिंग से वाकिफ नहीं हैं, then you are going to get something very startling or something very different about the notion beauty. So, let us start the poem, A Thing of Beauty. Please open your book on page number 99, 98. Yes, over here. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. Very beautifully. You can find out that in this poem, in the very beginning or the opening line of this poem, describes the beauty. What is a beauty? Or what is a thing of beauty? Thing of beauty क्या होते हैं? What are beautiful objects? Before we understand or before we try to understand a thing of object, it is very important to understand the meaning of beauty. पहले हम जाने आखिर ब्यूटी क्या होती है. अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, इफ वी टॉक इन कॉमन सेंस, ब्यूटीफुल एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स आवर आइज इज ब्यूटीफुल. हम लोग यही जानते हैं जो कुछ हमारी आंखों को अच्छा लगता है वो ब्यूटीफुल है. वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बाय नेचर, बाय इफेक्ट, बाय इम्पैक्ट. लेकिन अगर ऑन द फेस ऑफ इट वो अच्छा लगता है, उस चीज को देखने की इच्छा करती है, तो वो ब्यूटीफुल है. अगर वो हमें अट्रैक्ट करता है तो वो ब्यूटीफुल है. लेकिन इन लिटरेचर देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ ब्यूटी. लिटरेचर में ब्यूटी का अपना एक डिफरेंट मीनिंग है. लिटरेचर में ब्यूटी वो नहीं है जो हमारी आंखों को अच्छी लगे. वो हर चीज जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है वो ब्यूटीफुल हो जरूरी नहीं है. बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हम सभी लोग पहले जानते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. In this regard, there had been a poet named Thomas Gray. Thomas Gray ने एक पोएम है A True Beauty. ट्रू ब्यूटी में उन्होंने ब्यूटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक कहा उन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी और दूसरा उन्होंने कहा फिजिकल ब्यूटी. स्पिरिचुअल ब्यूटी में उन्होंने ट्रू ब्यूटी को दिखाया कि कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, अपने पर्सनालिटी से, जैसा वो दिखता है उससे वो ब्यूटीफुल नहीं होता. या अगर वो अच्छा लगता है तो वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के पश्चात वो नष्ट हो जाता है.
I mean, the physical beauty of a person declines and decays after a time period. So we cannot say कि किसी if any person is physically handsome or physically smart, then you cannot call that person beautiful. उस व्यक्ति को या उस लेडी को जो कि दिखने में अट्रैक्टिव हो, दिखने में प्रेटी हो, केवल और केवल उसके वो जैसे दिखती है उसके आधार पर उसको आप ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हो। ये उसकी फिजिकल ब्यूटी है। अगर उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे फॉल्ट्स हैं, देन दैट लेडी कैन नॉट बी डिफाइंड एज द ब्यूटीफुल वन। यहाँ पर यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सी दैट टॉमस ग्रे ने ब्यूटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जबकि अगर देखा जाए तो केवल स्पिरिचुअल ब्यूटी ही ब्यूटी है। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट beauty at all. Physical beauty is the charm. It may be it may make any person attractive. It may make any person pretty. It may make someone handsome or someone smart. But it cannot make a person beautiful. किसी व्यक्ति का चेहरा, किसी व्यक्ति का कॉम्प्लेक्सन, उसका बाल, उसकी हाइट, उसका फिगर, ये कुछ भी उसको ब्यूटीफुल कतई नहीं बनाता। उसको ब्यूटीफुल बनाता है उसके वर्क, उसको ब्यूटीफुल बनाता है उसका कैरेक्टर, उसको ब्यूटीफुल बनाता है उसका बिहेवियर, उसके आइडियाज। सो हियर फ्रॉम हियर अपॉन you may have to, or you will have to change your opinion regarding beauty. As we all know that John Keats is a worshipper of beauty. John Keats ब्यूटी के वर्शिपर हैं, और ये जो पोएम है ये इंडिमियन जो कि लांगर पोएम है उसकी बिगिनिंग से ली गई है। इसकी बिगिनिंग से ही यू कैन फाइंड आउट जो जॉन कीट का इटर्नल लव है। यू may फाइंड आउट, यू may सी द इटर्नल लव ऑफ ब्यूटी being voiced even from the very beginning of the line. He tells a thing of beauty is a joy forever, meant a beautiful object gives eternal joy to the one who seeks it. जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑनलुकर को इटर्नल जॉय प्रोवाइड करते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, क्योंकि इस चार्म इंक्रीजेस विद द पासेस ऑफ टाइम। समय के साथ साथ ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं इनका चार्म समय के साथ बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ब्यूटी लीव्स एन एवरलास्टिंग इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड। इट कैन नॉट एवर बी रिड्यूस टू नथिंगनेस। जो ब्यूटी है, ब्यूटी हमारे माइंड पे एक एवरलास्टिंग इम्प्रिंट डालती है। ये कभी भी नथिंगनेस पे नहीं पहुंच सकती। ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्यूटीफुल है तो अगर एक समय में वो ब्यूटीफुल है तो अगले समय में वो ब्यूटीफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका ब्यूटी बढ़ेगा, उसका ब्यूटी कम नहीं होगा, और ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि वो ब्यूटीफुल है ही नहीं। ओके, बट will keep a bar quiet for us. Poet John Keats tells that impression of beauty lurks in our mind
and remains preserved in the memory as a quiet bar. जो ब्यूटी का इम्प्रेशन है वो हमारे माइंड में हर समय बना रहता है और हमारी यादों में प्रिजर्व कर रखता है उस ब्यूटी को। जैसे कि क्वाइट बावर होता है, शांतिपूर्ण जो बावर होता है, कूलिंग प्लेस, क्वाइट बावर, और एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, या फिर और इन द फॉर्म ऑफ स्वीट ड्रीम्स के फॉर्म में ये हमारे माइंड में हर समय बना रहता है, विच रिवाइव एंड फ्लैश अपॉन आवर माइंड व्हेन वी स्लीप, जो कि रिवाइव हो जाता है, हमारे माइंड में फ्लैश हो जाता है जब हम सोते हैं तो। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, these memories may also revive when we are quietly breathing or meditating. ये जो मेमोरीज हैं ये उस समय भी रिवाइव होती हैं जब हम शांति से बैठे हैं, शांति से बैठ के ब्रीदिंग कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं विद अ हेल्दी माइंड के साथ। These beautiful thoughts and memories bind us to earth, yes. Therefore, on every morrow, or we reading a flowery band to bind us to the earth. यही कारण है these beautiful thoughts, ये जो सुंदर विचार हैं, मेमोरीज हैं, ये सब हमें क्या करती हैं? हमें अर्थ से बांध के रखती हैं। इसीलिए दस एवरी पासिंग डे, हर एक बीतने वाले दिन के बाद, ऑन एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह, वी प्रिपेयर अ रीद ऑफ फ्लावर्स, हम फ्लावर्स का एक रीद, फ्लावर्स का एक जो है गार्लैंड हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमें हमारे इस धरती से हमको बांध के रखता है, विच स्ट्रेंथन्स आवर बॉन्ड विथ अर्थ, जो हमारा बॉन्ड है इस अर्थ के साथ वो बांध के रखता है। एंड इट इज व्हाट इज दिस इज द ब्यूटी इन दिस वे और दैट वे। सो स्टूडेंट्स, in today's class we are doing up to here. We shall continue with this poem in the next part. Thank you. Have a nice day.